صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر و ناصر و معین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحال ازدواجی زندگی کیسے گزاریں، اس پر ہماری اور آپ کی گفتگو شروع ہوئی تھی، اور پہلے ایپیسوڈ میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ آخر یہ جو سنت نبی ہے نکاح، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ نے یہ نکاح کیوں رکھا. اس مقصد کو سمجھنے کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ آخر ازدواجی زندگی کو خوشحال کیسے بنایا جا سکتا ہے. لیکن اس سے بھی پہلے جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ وہ لڑکے وہ لڑکیاں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ اچھے رشتے کے تلاش میں ہیں اور ابھی تک ان کو رشتہ نہیں ملا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے کہ انہیں بہترین ہمسر نصیب ہو. کیا روایات میں کوئی ایسا عمل بیان کیا گیا ہے جس کو انجام دے کر والدین اپنے بچوں کے لیے بہترین ہمسر پا سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہا گیا جی ہاں، بہت سارے اعمال بتائے گئے ہیں جس کے ذریعے سے لڑکا لڑکی عمل کر کے یا والدین عمل کر کے اپنے بچوں کے لیے بہترین ہمسر حاصل کر سکتے ہیں. جس کا پہلا عمل یہ بیان کیا گیا کہ لڑکا اور لڑکی جن کو رشتے کی ابھی تلاش ہے انہیں چاہیے کہ وہ سورہ قصص کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں. ہمیشہ وہ جہاں بھی جائیں تو سورہ قصص ان کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ اپنے پاس رکھیں سورہ قصص کو لکھ کر. اس سے کیا ہوگا، وہ انسان جس کو اللہ نے آپ کا جوڑا بنایا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے. اللہ نے کہہ دیا قرآن میں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنا کر پیدا کیا ہے. تو وہ جو جوڑا موجود ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سے آ کر مل جائے گا اس سورے کی برکت سے. پھر دوسرا طریقہ بتایا گیا کہ وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بہت ساری بیٹیاں ہیں، 4-5 بیٹیاں اللہ نے دی ہیں. کتنا خوبصورت وہ گھر ہوتا ہوگا جہاں 4-5 بیٹیاں رہتی ہوں گی، اور کتنی اللہ کی بلیسنگ اترتی ہوگی اس گھر پر، سبحان اللہ. لیکن ایسے گھرانے میں نا والدین تھوڑے سے فکر مند ہو جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کو لے کر. تو اگر ایسا ہے ان والدین کے لیے کہا گیا کہ سورہ احزاب کو لکھے اور لکھ کر اپنے گھر کی اندرونی جو چھت ہوتی ہے نا، باہر والی نہیں، اندر والی جو چھت ہوتی ہے اس پر لگا دے. اگر چھت پر لگانا مشکل ہو، ممکن نہ ہو، تو پھر گھر کی دیوار کے کسی کونے میں ٹاپ سائڈ پر جو ہے نا، بالکل ٹاپ پر لگانا ہے اسے. تو انشاءاللہ پھر ان کی بیٹیوں کے لیے اللہ بہترین رشتے بھیجے گا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اگر کوئی انسان اپنے لیے بہترین ہمسر چاہتا ہے، لڑکا لڑکی کو ہی یہ کام کرنا ہے. ابھی جو اگلا تیسرا جو عمل بتایا جا رہا ہے یہ لڑکا یا لڑکی خود کریں گے، اس میں والدین نہیں آئیں گے. کیا کرنا ہے، آدھی رات کو اٹھنا ہے، کسی بھی حصے میں اٹھ کر وضو کرنا ہے، وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے، پاک جگہ پر بیٹھنا ہے، پوری خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے باتیں کرنی ہے، اور باتیں کرنے کے بعد جتنی مرتبہ ہو سکے ان آیات کو وہ ریپیٹ کرے، دہرائے. وہ آیات کون سی ہیں؟ سورہ آل عمران آیت 1 2 3، 3 آیات اس طرح سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. یہ 3 آیات وہ پڑھے جتنی بار ہو سکے اتنی بار. تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی پروردگار عالم بہترین ہمسر کا انتخاب کرتا ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا 5واں طریقہ جو بار بار بیان کیا جاتا ہے، بار بار اس طریقے کو اور اس سورے کو بیان کیا جاتا ہے رشتے کے لیے، وہ سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ اتنی خوبصورت یہ سورہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں اہل بہشت یعنی جنت میں رہنے والے لوگ 2 سوروں کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھیں گے ہی نہیں. ان 2 سوروں میں اتنا لطف اور اتنا مزہ ہے
कि इसके अलावा वो कोई और सूरा नहीं पढ़ेंगे। पहला सूरह यासीन और दूसरा सूरह ताहा। ये 2 सूरा अहले बहिश्त बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी तिलावत करेंगे। और सूरह ताहा के लिए कहा गया ये वो सूरा है कि जिसके वजह से जन्नत में नूर ही नूर होगा। इस सूरे की बरकत से, इस सूरे की वजह से पूरी जन्नत में रोशनी फैली हुई होगी। फिर उसके बाद कहा गया कि ये सूरा अगर वालिदैन किसी के घर जा रहे हैं अपने बच्चे के रिश्ते के लिए और वो चाहते हैं कि उसी घर में बच्चे का रिश्ता हो जाए, तो फिर उनके लिए ये काम करना ज़रूरी होगा कि वो सूरह ताहा को लिखकर अपने साथ लेकर जाए, अपने साथ रखें। जब अपने बच्चे के लिए रिश्ता लेकर जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि जहां हम जा रहे हैं वहां ये रिश्ता तय हो जाए, तो सूरह ताहा को लिखकर वो अपने साथ रखें और फिर उस घर में जाए, तो इंशाल्लाह वहां से इनकार नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये बताई गई सूरह ताहा के लिए कि उसे एक पेपर पर लिखें और लिखने के बाद उस पर पानी छिड़के और फिर वो सूरे का जो अगर केसर से लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़ाफ़रान से लिखेंगे ना तो लिखने के बाद जब उस पर पानी छिड़का जाएगा तो पूरा ज़ाफ़रान निकल जाएगा। जब वो पूरा ज़ाफ़रान निकल जाए तो फिर उसी को अपने चेहरे पे मल लेना है। वो पूरा पानी सूरह ताहा का अपने पूरे चेहरे पे लगाना है। या अगर ऐसे नहीं कर सकते तो पेपर पर लिखने के बाद वो पेपर किसी पानी की बोतल में या पानी के किसी बर्तन में डाल दें और फिर जब पूरा ज़ाफ़रान उसमें निकल जाएगा, जो तहरीर है कुरान की आयत की, वो जब उसमें निकल जाए तो फिर उस पानी का अपने चेहरे पे छिड़काव करें, उसे छिड़कें अपने चेहरे पर, ठीक है। ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर सूरा पढ़कर पानी पे दम करें और उसको अपने चेहरे पर लगाएं। जो मतलब लड़का और लड़की अपने लिए हमसर चाहते हैं उनके लिए कि वो अपने चेहरे पर इसको डालें। इसके अलावा सूरह ताहा की बहुत ज़्यादा फजीलत है, कभी मौका मिला तो उसकी आपकी खिदमत में उसकी फजीलत को बयान करूँगी। बस ये कहते हुए कि इस सूरे के अलावा अगर लड़कियां खुसूसी तौर पर ये चाहती हैं कि उनका शौहर जो है वो बहुत खूबसूरत हो और बहुत अच्छा हो और बहुत नेक हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरह यूसुफ की तिलावत करे इंशाअल्लाह व तआला। ये हो गया 4 तरीक़ा या 5 शायद हो गए। अब तरीक़ा 6 और क्या करना चाहिए और इंसान क्या कर सकता है अच्छे रिश्ते के लिए, तो उनके लिए कहा गया कि वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तवस्सुल करे। और इमाम रज़ा से तवस्सुल करने के भी 2 तरीक़े बताए गए। पहला तरीक़ा इमाम रज़ा से तवस्सुल करने का ये बताया गया कि वो या तो एक अरीज़ा लिखें और अरीज़ा लिखने के बाद अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो वो अरीज़ा लिखें। अरीज़े में अपना नाम अपने वालिद के नाम के साथ तहरीर करें और लिखने के बाद उसमें अपनी हाजत शादी वाली मौला से जो है वो रिक्वेस्ट डालें मौला की खिदमत में और उसे कहें कि इसे ज़रिए में डाल दें। और अगर आप ख़ुद जा रहे हैं तो बहुत बेहतरीन बात है, अपना वो अरीज़ा ख़ुद अपने हाथों से डालें तो फिर मौला की तरफ से बहुत बेहतरीन हमसर का इंतज़ाम होता है। उसके बाद कहा गया दूसरा तरीक़ा ये है इमाम रज़ा से तवस्सुल करने का हमसर के लिए कि जब भी वाजिब नमाज अदा करें, वाजिब नमाज के बाद आखिर में जो शुक्र का सजदा किया जाता है उस सजदे में एक जुमला कहें मौला से तवस्सुल करते हुए, और वो जुमला ये है अल्लाहुम्मा सल्लि अला इब्न मूसा रज़ा वज़व्विजनी मिनस सालिहीन। सलावात व सलाम हो इमाम रज़ा की ज़ात गिरामी पर और ए मौला मेरे लिए बेहतरीन सालेह इंसान का बतौर हमसर इंतखाब करें। तो फिर मौला इंतज़ाम करते हैं इंशाअल्लाह। यकीन कामिल के साथ ये अमल अंजाम दें। फिर उसके बाद एक आखिरी बात और बहुत खूबसूरत बात, जब ये मसला आयतुल्लाह बहजत से पूछा गया था, जब उनसे सवाल किया गया कि मैं शादी करना चाहता हूँ और सही उम्र में करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी जो है ना वो सही एज में हो जाए और सही उम्र में मुझे मेरी जो हमसर है ज़ौजा है वो नसीब हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए। इतना खूबसूरत जवाब है ना, ये सिर्फ आयतुल्लाह बहजत ही दे सकते थे। इतना हसीन जवाब उन्होंने दिया। कहा अगर चाहते हो कि तुम्हारी शादी सही वक्त में हो जाए और
सही वक्त में तुम्हें सही ज़ौजा मिल जाए, सही हमसर मिल जाए, तो बस एक काम करना, और वो एक काम ये है कि अपनी नमाज़ों को अव्वले वक्त अदा करना। आदत डालो कि तुम्हारी नमाज अव्वले वक्त हो, और अगर नमाज अव्वले वक्त हो जाएगी, तुमने नमाज को वक्त पर पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी के सारे काम खुद ब खुद वक्त पर होंगे, क्योंकि तुमने अल्लाह के हुक्म को वक्त पर किया। तो फिर अल्लाह तुम्हें सारी चीज़ें वक्त पर देगा, डिले नहीं करेगा, क्योंकि तुमने नमाज डिले नहीं की, लिहाजा अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी के किसी काम को डिले नहीं करेगा। परवरदिगार आलम तुम्हें बहुत सारी नेमतें देगा, बरकतें देगा, बेहतरीन हमसर देगा, और सही वक्त पर देगा। जो एज में मिल जाना चाहिए उस एज में, उस उम्र में तुम्हें तुम्हारा हमसर नसीब हो जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है। ए काश हम इन बातों को समझते और इस पर अमल करते। देखें, अब सूरह ताहा का वो आखिरी मरहला हम तय करेंगे, जिसके लिए मैंने कहा कि फिर कभी इंशाअल्लाह, तो चूँकि अभी वक्त है तो मैं उसे बयान कर दूँ। सूरह ताहा एक ऐसा सूरा है कि जिसके लिए बहुत सारी करामात लिखी गई हैं। उसका एक तरीका उलमा और उरफा ये बयान करते हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत अगर पाना हो या बड़ी से बड़ी मुश्किलात को ख़त्म करना हो, तो सूरह ताहा को तुम कभी फरामोश न करना, इसे कभी अपने आप से जुदा न करना। और एक मुख्तसर सा अमल बयान किया गया कि अगर तुम ये अमल अंजाम देते हो सूरह ताहा को लेकर, तो फिर तुम्हारी सारी परेशानियां चाहे जितनी बड़ी हो ख़त्म हो जाएंगी, और चाहे जितनी बड़ी हाजत हो वो तुम्हें मिल जाएगी। वो अमल क्या है? कहते हैं 800 टाइम सिर्फ लफ्ज़ ताहा कहना है। ताहा ताहा ताहा, है ना, 800 मरतबा। उसका तरीका क्या है 800 मरतबा कहने का? पहले एक तस्बीह पढ़े 100 मरतबा सूरह ताहा को, के लफ्ज़ को, सिर्फ ताहा को, यानी सिर्फ ताहा कहना है पहली आयत, बाकी कुछ नहीं। 100 मरतबा ताहा आपने कहा, और फिर रुक गए, रुक कर एक बार सूरह तौहीद पढ़े, फिर 100 मरतबा सूरह ताहा, फिर एक बार तौहीद, फिर 100 मरतबा सूरह ताहा, और फिर एक बार सूरह तौहीद। तो 7 मरतबा आपको सूरह ताहा को 100 मरतबा पढ़ने के बाद सूरह तौहीद पढ़नी है। लेकिन जब 800 मरतबा हो जाए, लास्ट बिल्कुल तस्बीह हो हमारी, और 100 मरतबा हम जब कहें और 800 मरतबा जब हमारा ताहा ताहा मुकम्मल हो जाए, तो फिर सूरह तौहीद को 17 टाइम्स पढ़े, 17 मरतबा। अगर कोई ये अमल अंजाम देता है, कहा गया कि कोई हाजत ऐसी ना होगी जो इसे ना मिले, जो उसने मांगी है। मसलहत परवरदिगार आलम को भी नज़र में रखें, उसकी रज़ा को भी नज़र में रखें, इंशाल्लाह वो नसीब होगा। और कितनी भी बड़ी परेशानी हो, वो सारी की सारी परेशानियां उसकी ख़त्म हो जाएंगी। खुदा की बारगाह में दुआ गू हूँ कि परवरदिगार आलम, अव्वलन तो वो लोग जो रिश्ते इज़्दिवाज से जुड़ चुके हैं उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बना दे, और वो लोग जो अभी अपने लिए हमसर की तलाश में हैं उन्हें बेहतरीन और सौलेह हमसर नसीब फरमा। उसके बाद माबूद हकीकी तेरी बारगाह में एक ही दुआ है, एक ही आरज़ू है, एक ही तमन्ना है, कोई आरज़ू है ही नहीं उसके सिवा, और वो ये कि ज़ुहूर इमाम ज़मान में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।